based on the customer demand. जैसे अपना हाथ में नहीं रहता पर जो कंसिडर जो उन्हें जो मार्केट से रहते हैं माइंड है उसमें 50% क्या हम कंसिडर करते हैं सब पोटेंशियल है। वन टाइम ये नंबर निकलना चाहिए इसी आप मॉनिटरिंग कर रहे हो इसी नंबर्स के बाद बाजू में आपको उससे वो फैक्ट है वैसे भी कोई की बात है वेरी नाइस थैंक यू आप भी करो सेल्स cannot be either you know, to skew the sales to reflect what is your business trend. For the last 2 years, has profit percentage gone up or has it remained stable or gone up? So you see along with the sales profit percentage also gone up. Yes. Probably in the past year, we have making confident or making it out of business. Somebody so I have started first session with Yogesh sir. I want to know what 50 CR and I will ask more than that. That is because of the training I get this. There are two major things that you are doing as adding people in various capabilities. We are adding full number of products. The whole thing which is huge going to be that there is your regular family, that's what it was, is a stable family. You can also be able to put your heart soul in this. You can focus 10 to 20% of your turnover on that also. That is the fix. You can spend, where to spend the money and grow your business, because SME's main focus is related to develop the business and revenue, but second part is related to where to spend is also important. On that aspect, all the aspect, it is triggered to the SMEs, so we can budget and we can plan for growth as well as spending on various aspects like human resource and product. We are doing it from last 3 years consistently. First year we faced some issues, understanding, but after that in our organization, that's to grow our business. Basis of their guidance, we are doing very well and as per our planning. So it will be great, and thank you for your time. When we started delivering inputs, you got the English product, we useful expenses. Finally, distributed into the company, they are directives and these expenses. Spend this money or not spending. When we started delivering inputs, next year we will have 28 goods, then 50 goods. Last year we did service. Very next year we will do the 3 financial years. What we do decide
आज एंट्री है अपनी आहे ना क्वालिटी वगैरे काय मेरे को क्वालिटी दे तू बस क्वालिटी तुला काय पाहिजे ते सांग मला मी देत का बरोबर फक्त फक्त एक रिक्वेस्ट है राग नको मानो राग नहीं मानेगा भाई मैं बहुत फ्रेंकली आदमी मैं अपने आदमी को बहुत चाहता हूँ ये बंद करो तू भले मेरे साथ कर काम या मत कर लेकिन बहुत आगे करो करे आता आपल्याला आहे ना वायरलेस घ्यायचे 1-2 दिवस जाऊ दे सगळं आपण इक्विपमेंट फिरून सगळं गोळा करणार It was really a hand holding. This program gave us the guidelines, walk towards the correct path to achieve our goal. We now have a clear number in front of us. Coming to the point is that I came to know that it's not at all for the trigger. I came to know the clarity of the main thing which I learned is the karna kya hai. I was very, very grateful and happy Good morning, friends. for helping me out Good morning. in career option. आवाज नहीं आ रही है. Good morning. इतके वर्ष We'll start the session after 10 minutes. Just waiting for the room full so that everybody can take advantage of this. Okay, thank you. By the end of the day tomorrow, we should be all good information.
been, rather SIL has been associated with you for the last 3 years. The growth that you have seen in your company since day one till now, how that growth has been? First, we were a company of 100 people. Our directors and our engineers, our production staff, our senior management, everything. Now we have an umbrella of around 400. That itself should be big value. And now we plan to go into 800,000. So this has been a big shift in our company. We are a small scale company. Back then, around 17 crores in the year 2020. When hand with SIR, we went to 33 crores immediately in the second year, and that was the most challenging year of pandemic. Through that, in that crisis situation, also we were in double, which was a significant factor that bolstered our future aims. And further to that, we went to 60 crores, and now we have plans to scale it up to 150 crores and eventually up to 750 crores in the next 5 years. Beautiful, outstanding, vaccine. Mentor, great. Mr. Rose, I wealth creation factor. School, progressive and good. Directive, life changing, way to direction, great support. Profound motivation. Inspiration, adventure, catalyst, navigator, development consultant, tool of life, university for entrepreneurs, growth catalyst, dictionary of motivation, mentor, catalyst, business leader, guide, lighthouse.
आरंभ का बजट सेशन किया, क्योंकि हमने भी आरंभ का सेशन लास्ट 1 महीने से अटेंड कर रहे हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग का सेशन डेली अटेंड करते थे और उसमें से बहुत कुछ नॉलेज मिला जो हमारे बैक एंड में भी नहीं था कि ये हमें करना चाहिए ग्रोथ के लिए। तो सेशंस बहुत ही इंटरेक्टिव था और हेल्प किया है कि कैसे बिजनेस को ग्रो करने के लिए किया है। आपको हो जाएगा ना, उसको बंद मत करना, सामने बैठोगे ना। आज का जो शीट कंप्लीट हुआ है वो सब 1 महीने का हेल्प में इन्हीं को देखते हैं। टीम का सपोर्ट है और हमारा आज का बजट पूरा हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि यस वी कैन डू इट बिकॉज ऑफ SRL। थैंक यू SRL, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। थोड़ा आगे आएंगे, बैक बेंचेस जरा फ्रंट बेंच में आएंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज, क्योंकि लोग भी कम है। पहली सीट पे आइए, पहली सीट पे आइए, प्लीज कम इन द फर्स्ट सीट, ताकि पीछे से जो लोग आएंगे वो बैठ सके आराम से। यस, नमस्कार। वापस बोलेंगे कि नहीं नमस्कार? इसमें से कितने बेसिकली मेरा नाम संजू उमरी है। आई एम करते हैं, इसके बारे में आज का डिस्कशन होगा। एंड मोस्ट आप बिजनेस किसके लिए करते हो? बिजनेस किसके लिए करते हो? सिंपल सा क्वेश्चन, पैसे के लिए ना, प्रॉफिट, दैट्स वेरी सिंपल। और इसमें से कितने लोग अपना खुद का बैलेंस शीट पढ़ते हैं एवरी ईयर? थरली पढ़ते हैं? क्या क्या समझ में आती है? प्रॉफिट लॉस, दो ही चीज समझ में आते हैं हमें। बाकी एसेट क्लासिफिकेशन कैसा होता है, क्या होता है, सब के बारे में जानकारी बहुत कम लोग को होती है, कुछ लोग को होता होगा। तो आज का जो सेशन है वो हम बैलेंस शीट कभी बनाते हैं? आप लोग बैलेंस शीट कभी बनाते हैं? अप्रैल मई में 25 का जो बिजनेस होती है 25 अप्रैल मई में बनाते हैं। उसको बोलते हैं हम पोस्ट मॉर्टम, क्योंकि हमारा पूरा साल का काम खत्म करना है। आप लोग कर लेते हो अच्छी तरह से, मुझे पता है, आप लोग भी पता है। तो ये जो सेशन है हम बैलेंस शीट बनाएंगे अगले साल का आज ही, ताकि आपको प्री मॉर्टम करेंगे, राइट? ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस में है। हमारी जर्नी शुरू होती है एक छोटे से इंसिडेंट से। हम एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गए थे पंचगनी, करीबन 40 पार्टिसिपेंट्स थे। तो कुछ जापानीज डेलीगेट्स आए थे। उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन पूछा, वहां से हमारे दिमाग में कुछ चीजें स्ट्राइक होने शुरू हो गए। उनका क्वेश्चन ये था कि आप हमें बताइएगा, आप कितनी कंपनीज जानते हो हिंदुस्तान में जो मोर देन 100 इयर्स ओल्ड है? 100 साल से ज्यादा पुरानी कितनी कंपनीज आप जानते हो हिंदुस्तान में? बता सकते कोई? कितने कंपनी जानते हैं आप 100 साल से ज्यादा पुराना है? बताइए। 5, 10। और अभी पुणे में कोई है? पुणे में कोई कंपनी है जो 100 साल से ज्यादा पुराना है? ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। नहीं, पेन कार्ड के लिए ऐसे कुछ रीजनल प्लेयर्स होंगे, तो सब
सब मिला जुला के जितने भी स्टेट्स हैं, समझ लो अपने पास करीबन 30 ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स का सब मिला जुला के हम कितना भी गिनती करेंगे 50, 60, 70 के ऊपर जाएगा नहीं। देखो नो बहुत मुश्किल से 60, 70 जाएंगे। अभी उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आपको पता है कि जापान में कितनी कंपनीज है विच इज मोर देन 100 years old? कितने होंगे? अंदाज लगा सकते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, जापान इतनी छोटी देश है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर नेचुरल कैलामिटीज नहीं होती, जैसे कि फ्लड हुआ, वोल्केनोज है या अर्थक्वेक्स है, ऐसा बहुत कम होता है जो जापान में हर साल होता है, राइट? इतना सब होने के बाद उधर कितनी कंपनीज होंगी जो मोर देन 100 years old है? अंदाज लगा सकते हो? हिंदुस्तान में 70 है, पकड़ लो, 100 पकड़ लो। जापान में कितने होने चाहिए? साइज ऑफ द जापान पकड़ के कितने होने चाहिए? मोर देन 100। 1 लाख भी हो सकता है सर, मोर देन 100 लाख भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है। स्पेसिफिक फिगर कुछ तो 100, 200, 50, 200, 250, 200। आई वॉज शॉक, उन्होंने जब जवाब दिया था, शॉकिंग ये था कि 200 के ऊपर 2 जीरो जोड़ दो, कितनी हो गई? 20,000 कंपनीज इन जापान हु आर existing more than 100 years, right? तो हिंदुस्तान में ऐसा कौन सी चीज है जो हम नहीं करते, जो 100 years हम ज्यादा 100 years से ज्यादा ऑपरेशनल नहीं हो सकते? क्या हमने कौन सी बात की है? कुछ तो बात किया होगा ना? कौन सा बात किया है? ब्रेन नहीं है, क्या बात है? आएंगे हम वहां पे, ब्रेन की तरफ भी आएंगे। फिर उन्होंने बोला, तो हमने उसके लिए मतलब ये सब सिस्टमैटिक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है समझने के लिए अमेरिका से कुछ स्कॉलर को बुलाया। तो स्कॉलर है, पूरा 4 घंटे का सेशन था। तो जापानीज का एक खासियत है, क्या उनका वीकनेस है पता नहीं, उनको एक ही लैंग्वेज पता है। कौन सा? जापानीज। उनको इंग्लिश नहीं पता, मराठी नहीं पता, हिंदी नहीं पता, कुछ नहीं पता, ओनली इंग्लिश पता, सॉरी जापानीज पता है। तो उन्होंने अमेरिका से स्कॉलर को बुलाया कि स्टडी हम सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो स्कॉलर आया, आधा घंटा बात किया इंग्लिश में, और जापान वाले को बोला आप ट्रांसलेट करो। तो उन्होंने कुछ तो बोला, एक 3 वर्ड्स में खत्म हो गया, पूरा ट्रांसलेशन खत्म। फिर आधा घंटा बात किया अंग्रेज में, फिर बोला खत्म, आधा घंटे का पूरा एक लाइन में खत्म। फिर आधा घंटा बात किया, सब 3.5 घंटा होने के बाद में अंग्रेज का दिमाग खराब हो गया। मैं 3.5 घंटा बात किया, आप 1 मिनट भी बात नहीं किया, तो आप क्या बोला उनको? हमने कुछ नहीं बोला सर, ये सब हम ऑलरेडी करते हैं, आप जो बोल रहे हैं सब ऑलरेडी करते हैं, उतना ही बोला हमने। तो दैट इज जापानीज, क्योंकि उनका सिस्टम्स इतनी स्ट्रांग है, वो इंसान के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं? इंसान के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन वो लोग ज्यादातर भरोसा करते हैं इंसान के ऊपर, लेकिन वो इंसान को ब्लेम नहीं करते। अगर कुछ भी फॉल्ट है वो सिस्टम को ब्लेम करते। लेकिन हमारे इधर कुछ भी गड़बड़ हो गया, ये सर का प्रॉब्लम है, ये सर का प्रॉब्लम है, अरे उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। वी नेवर वर्क अपॉन सिस्टम्स, वी वर्क ऑन इंडिविजुअल्स। सो इंडिविजुअल वर्किंग में क्या करेंगे तो आपको तकलीफ होने ही वाला है, क्योंकि इंसान में गलती होगा ही, राइट? अभी इतना सब होने के बाद में आप जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे एक बात बताइएगा, आप लोग ऑन एन एवरेज कितनी लैंग्वेजेस, आपने बोला ना ब्रेन नहीं हम यूज नहीं करते, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। कितनी लैंग्वेजेस बात करते हैं आप लोग? 3 मिनिमम। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मुझे मलयालम भी आता है, और किसी को गुजराती आता है, किसी को मारवाड़ी आता है, किसी को तेलुगु आता है, किसी को कन्नड़ आता है। तो मिनिमम 3 तो हर हिंदुस्तानी जानता है, राइट? एंड जापानीज ओनली 1 लैंग्वेज। सो हमारी ब्रेन कितनी टाइम्स पावरफुल है जापान से? 3 टाइम्स पावरफुल है हमारी ब्रेन। एंड फिर भी हम कहाँ पे हैं? आज भी फायर फाइटिंग पे उतरे हैं, राइट? आज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, राइट? सो वी डोंट हैव अ लॉन्गर विजन, प्लानिंग नहीं है, सिस्टम नहीं है। ये सब चीजें अगर जब तक नहीं होगी तब तक आप बिजनेस करते हो पैसे के लिए, डेफिनेटली आप नहीं चाहते हैं क्या कि आप 5 साल से बिजनेस कर रहे हो, 10 साल से बिजनेस कर रहे हो, 15 साल से बिजनेस कर रहे हो। ये बिजनेस आप नहीं भी रहेगा तो आगे चलना चाहिए,
बिजनेस ओनर का मतलब होता है मैं जाऊं, रहूं, नहीं रहूं तो भी बिजनेस चलना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं बिजनेस ओनर्स? आप रहे नहीं रहे तो बिजनेस चलेगी, चलेगी, ग्रेट, वंडरफुल। तो बाकी लोग क्या हुआ? वी आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। जब तक मैं हूं तब तक मेरी बिजनेस है, राइट? सो माइग्रेट फ्रॉम अ सेल्फ एम्प्लॉयड टू बिजनेसमैन इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। वो एक दिन में होगा नहीं, क्योंकि हमने जब भी बिजनेस शुरू किया था जीरो से शुरू की, राइट? किसके लिए शुरू की थी बिजनेस? पैसे के लिए। कोई जॉब करता होगा या कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस होगी या तीसरा कोई इंस्पिरेशन होगा किसी से मिला, ये सब हमने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस फेस किया हमने? चैलेंजेस फेस किया कि नहीं किए? बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हमने। बिजनेस इसके लिए शुरू किया, एक तो पैसा आना चाहिए और दूसरा उसके साथ साथ में शांति भी आनी चाहिए। शांति है तो कोई नहीं ना, नहीं तो शांति भी आनी चाहिए साथ साथ में। बट अनफॉर्चुनेटली पैसा आ गया, शांति गए ढूंढने। ऐसा ना जैसा बिजनेस आप भी पढ़ते हैं, इतनी चैलेंजेस फेस होती है, इतनी लफड़े आप फेस करते हैं एवरी डे में, तो शांति नाम की चीज थोड़ी धीरे 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 निकलने लगते हैं। एंड आगे चल के फिर वो शांति आगे क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन। अरे क्या को मैंने बिजनेस, बिकॉज वी आर स्टिल ऑन दैट पर्टिकुलर मोड दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सो फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड यू हैव टू माइग्रेट टुवर्ड्स बिजनेस ओनर्स, राइट? दैट्स अ प्रोसेस, दैट्स अ सिस्टम। सो फॉर दैट उसके लिए हम ये सेशन रखे हैं आज के दिन में। तो हम आज इन्वाइट करेंगे, मतलब आज हमारा जो स्लाइड चालू है, हम क्या करें एज अ सील में, दैट इज स्कूल ऑफ इंस्पिरेशन लीडरशिप। We are basically into consulting, coaching, training and outsourcing. Next slide. Thank you. At School of Inspiration Leadership, we are committed to empowering businesses and individuals to break barriers and achieve unparalleled growth. कितने लोग चाहते हैं कि अब मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए? कितना ग्रो होना चाहिए सर? मिनिमम 10x, कितने साल में? Maybe 5 years. Okay, great, wonderful. With a mission to transform organizations through proven strategies, innovative solutions, and impactful training programs, SIL stands as a trusted partner for businesses aiming to scale sustainably. Okay? तो सर ने बोला मिनिमम 10x होना चाहिए 5 years में। कितने लोग उसको एग्री करते हैं? मिनिमम 10x ग्रोथ होना चाहिए 5 years में। 10x मतलब आज 10 करोड़ रहेगा तो 100 करोड़ होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि हो सकता है? ओके। एंड हमारे इंडियंस की खासियत है कि हम जब तक खुद नहीं करेंगे एंड खुद झेलेंगे नहीं, तब तक हम एग्री नहीं करते। देयर आर प्रूवन प्रोसेसेस को स्केल करने के लिए, लेकिन वो प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते हैं। हम अपने दिमाग लड़ाएंगे, हम दिमाग फोड़ेंगे एंड दिमाग फोड़ने के बाद में कभी कभी बन जाता है, कभी कभी क्या होता है आपको पता है, राइट? तो देयर आर प्रूवन प्रैक्टिसेस कि हम स्केल कैसे किया जाए, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनीज आप दिखते हो उन्होंने वो सिस्टम फॉलो किया है। We have more than 1700 plus consulting projects already done, already executed. आपने 5 साल बोला, हम 1000 days बोलते हैं। 10x आपको स्केलेबल होना चाहिए 1000 days में, that is almost 3 years में। उसके लिए स्टेप वाइज हम प्लान कर सकते हैं। And we already scaled lot many businesses in 3 years time. 500 plus MSC को empowering success किए हैं। And 24,000 plus business owners got trained in SEAL under the leadership of Dr. Yogesh Baba. केस स्टडीज में कुछ कंपनीज के नाम हमने लिखा है। EC करके कंपनी, यहाँ पे उनका स्टॉल भी है, अपना महाटेक में आप जाके पूछ भी सकते हो। मिस्टर अमित अरोकर है। He started when we joined him as a consultant. He was 13 crores. Today ये साल में 242 crores का उनका टारगेट अचीव होने वाला है in 3 years में। That is 36 months precisely. Mr. Sanket Chandole,
MSM Process Solution Private Limited started from 7 crores. In 2 years' time, he has already closed 58 crores. This is the kind of milestones we have achieved. Mr. Gautam Malhotra, garden needs 12 crore to 142 crores in 40 months. Mr. Srinivas Chaudhary, Theatre Automation Private Limited, 5 crores 48 months. 5 to कितना percentage growth हो गया? 5 to 108. कितना growth हो गया sir? It's 20x. It's not 10x. In 4 years. So this is the kind of impact we can create on your business. तो इसका जो पीछे का ड्राइवर है, जो ये बिजनेस इतना स्केलेबल किया है, एक प्रोसेस सिस्टमेटिकली इसको ग्रो किया है, इसका पीछे का जो मेन ब्रेन है, कितने लोग को ब्रेन है, कितने लोग को लगता है कि हमारे बिजनेस हमारे कंट्रोल में है, कितने लोग को लगता है कि मेरी बिजनेस मेरे कंट्रोल में है, किसी को नहीं लगता मेरी बिजनेस मेरे कंट्रोल में नहीं है, नहीं है। कमाल की बात है सर, किसी को नहीं लगता। चलो अपनी बॉडी अपने कंट्रोल में है क्या? आप लोग की बॉडी, खुद की बॉडी अपने कंट्रोल में है? पक्का है? आपका ब्रेन जो बोलेगा आपका बॉडी करेगी, आपका ब्रेन जो बोलेगा आपका बॉडी करेगी, करेगा पक्का। चेक करते हैं उसको, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हम चेक करते हैं ताकि हम अपना बिजनेस दूर की बात है, अपने खुद की बॉडी के ऊपर अपने कंट्रोल है। आपका दाहिने हाथ ऊपर कीजिए, इसको ऐसे घुमाइएगा, घूम रहा है मस्त एकदम, मतलब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है। अभी लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइएगा, इसको उल्टा घुमाइए, घूम रहा है मस्त, आपकी बॉडी आपका कंट्रोल में है। अभी एक नई चीज करेंगे, राइट हैंड उठाइए वापस, उसको क्लॉकवाइज घुमाइए और दूसरे हाथ को उल्टा घुमाइए, साथ में एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। अभी समझ में आ रहा है? अपने बॉडी का कंट्रोल है अपने पास। अपने ब्रेन जो बोलता है, अपने खुद की बॉडी नहीं सुनती, बिजनेस और लोगों की बात तो दूर की बात है, राइट? सो इसके पीछे जो ब्रेन है, ये बिजनेस स्केलेबल करने का पीछे जो ब्रेन है, इनसे आप सुनना चाहोगे कैसा होता है ये सब चीजें? कितने लोग सुनना चाहेंगे? सभी सुनना चाहेंगे। सो इस our founder, Silk founder है Dr. Yogesh Pawar, one of the Asia's top authorities in leadership and business strategy. He's an entrepreneur, author, keynote speaker and business school faculty member with a global client base. ये हमने सिर्फ 4-5 बुलेट पॉइंट्स डाला है कि आप बोर ना हो, ये लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है? He's got a master's degree in transactional analysis from ICTA Kochi. He's a PhD doctor in predictive psychology. Predictive psychology पता है क्या है? मुझे भी नहीं पता, ठीक है? Speaks and consults internationally for large companies, SMEs and government organizations. Specializes in people and business transformation, business model re-innovation, impactful leadership development. सुना जाओगे? So let us welcome with a big round of applause Dr. Yogesh Pawar. Welcome, sir. Stage is all yours. Let's check. Give me a mic. No, it's not working. तोपर्यंत हे चालू होतंय का बघ? नाही, हे नाही झालं.
Can you hear me? So quick question, how many of you are in business? How many of you own the business? Two different things, right? So fundamentally, if you're owning a business, what are the most critical elements? Top 3 or 4 elements that you would want to speak. You can share with me right now quickly. ये 4-5 चीजें अगर सही हो जाए तो धंधा चल पड़ता है. Okay. Say it, okay. Recovery, okay. People, okay. Financial management, okay. Fund management. Profits, okay. Anybody else? That's it? All हो गया? Sorry? Opportunity. That's market. Somebody said market, right? Market. It's working? Can you hear me clearly? Thank you. You can hear me clearly, right? So, if all of this works together, that's when we say that the business is growing. Yes or no? Now, We will cut all of this in the next 9 minutes. I'll help you cut. English is comfortable, right? Marathi मला फक्त शिकायचं. So, what we do is We will cut everything into small pieces and look at how we can plan our entire year, okay, in a frame that allows us to go step by step and achieve the goal. Is that okay? How many of you do budgeting? Budgeting? You do budgeting? How many of you achieve your budgets? Just check if this is not clear. This is not clear. Okay? Is it okay now? Sure. So, few people said that you make budget. Yes or no? Yeah? Just raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many of you achieve the budget? 1. So say assuming that 30, 40 people sitting in this room, out of which 6 people make budget. 1 person achieve the budget. You see the pyramid now. Acha, what is the purpose or reason why you don't make budget? Budget नहीं बनाते. If you ask your beta, she has a budget. So धंधे में budget क्यों नहीं? अच्छा, 2 ही कारण. पहला नहीं है. दूसरा मैं करना नहीं चाहता. Is that okay? क्योंकि मेरे को इतनी गोची है कि सब बाहर निकल जाएगी. ऐसा ना? इतनी खिचड़ी है, सारा कचरा ऊपर आ जाएगा. साफ सफाई करते हैं तो क्या होता है? सारा कचरा बाहर निकलता है. तो वो कचरा बाहर निकलने से डरता हूं. ये 2 कारण हैं. And why I'm saying this is because for the last 10 years, School of Inspiration Leadership as a consulting organization, we've trained over 24,000 entrepreneurs like you, around 700 consulting projects. और हर consulting project में जब हम ओनर से बात करते हैं तो डेटा बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही उनका पैसा लेके चले. So what we realize now कि जब तक इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि डेटा ट्रांसपेरेंसी, डेटा को सही देखना, सही तरीके से परखना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा क्या है बोलते हैं? इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इफ डेटा इज नॉट सीन राइट, जस्ट इमेजिन इंडिया का पाकिस्तान is going and the scoreboard is not there. Right? Just imagine, बोलेंगे there's no stops. And just imagine, there's no boundary line. So fundamentally, a business is पूरा राम भरोसे जो है, अगर ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं है. क्या है? पूरा रात से हर ओटीपी तुम्हारे पास आना है, हर बंदा तुम्हारे पास तुम्हारे पास है, हर बंदे ने एक दूसरे के साथ तुम बताओ कि तुम महापुरुष. सारे जवाब तुम्हारे पास ही. So हमने लोगों को
into it, but let's look at certain management aspects that we need to build. हे नाही चालत आहे ना? मग हे बंद करू का? करा. Is that okay? Okay. So let's look at some management practices and the way we need to look at it. If you want to click photographs, you can click photographs. You want to scan it, you can scan, no problems with that. Absolutely okay with that, right? Please look at the statement and tell me if it's true or false. Statement को देख के बोलो true or false. जिस आदमी को ये नहीं पता किधर जाना है, उसको सारे रास्ते खुदा की तरफ जाते थे. Right? हम गाड़ी भी निकालते हैं, कहाँ जाना है पहले पूछते हैं. दोस्तों के साथ नहीं जाते, घर वालों के साथ नहीं जाते. तो अगर रहते तो ये मालूम नहीं है इस धरती को अगले 31 मार्च तक कहाँ लेके जाना है. ऐसा नहीं सोचना चलो जाते. राइट. लास्ट ईयर 10 करोड़ किया, चलो इस बार एक काम करते 25 करोड़ करें. ऐसा नहीं हो सकता ना. ये तो सिर्फ करेंगे बोलेंगे वंदे मातरम वाली स्टोरी. There has to be some methodical way of doing it. Do you agree? Yes or no? Yeah. So very importantly, that you have to be crystal clear about where you want to go. Now, what is the process of doing this? At the top, इसको value pyramid कहते हैं. At the top is the values of the company. ये concept तत्वों के आधार है मैं संस्था चला. अब ये बहुत ऊपर 30,000 फीट पे चलता है. Then I go down and say this is the mission of my company. Mission मतलब क्या है? एक emotional statement देता है जो सब लोगों को bind करके रखता है. Is that okay? It's an emotional statement that binds everybody together. Then what is the vision? A dynamic destination. मेरे mental दिमाग में आंखों से जो मैं देख पाता हूँ. लोग हमेशा confused रहते हैं mission में, है ना? पर basic क्या मैं क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ. ये स्टेटमेंट जो सबको मालूम है, राइट? तो वो गाड़ी के बस पे अगर पार्टी लग गई, ये गाड़ी महाबलेश्वर जा रही है, तो महाबलेश्वर जाने वाले लोग किसमें बैठेंगे? तुम किधर से भी पकड़ के पैसेंजर भरने के लिए थोड़ी गाड़ी भरोगे. सो पार्टी तो पहले लगाओ. एंड दैट पार्टी इज टिपिकली द विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? यस, नो, क्लियर ये है क्या? ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस. द नेक्स्ट पार्ट हियर स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? Anybody? What do you mean by strategy? The word strategy? अच्छा, मराठी अनुवाद बता देना. चलो मराठी अनुवाद बता देना. क्या? प्लानिंग. प्लानिंग म्हणजे स्ट्रॅटेजी. ओके. काय काय सॉरी? वे टू अचीव सम. ओके. आणि काय? हिंदी या मराठी अनुवाद स्ट्रैटेजी का इज रणनीति. इसका मतलब रण है. रण मतलब दो लोग हैं. अकेले साथ तो झगड़ा नहीं करेंगे, दो लोग हैं. Which means there is an opposition. Is that okay? My method to win over the opposition means a strategy. Is that okay? Which means अब ये over the win किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? अपन मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपन बैंक के अगेंस्ट जा रहे हैं जो अपने से 10% पैसा मांग रही है, अपन वो इन्वेस्टर के अगेंस्ट जा रहे हैं, ब्याज से दिए पैसे उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, अपन वो नॉन प्रोडक्टिव के अगेंस्ट जा रहे हैं जो एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो बनाई जाती है वो रणनीति. इज दैट ओके? अब देखो रणनीति सिर्फ मार्केट नहीं है. कितने लोग दिल पे हाथ रख के बताओ, आज अगर मौका मिले आपके पास जितने लोग हैं उनको वापस हायर करने का, वही आदमी आप वापस हायर करोगे. जितने लोग हाथ पे हाथ रख के बोल दे, आप सबको हायर करोगे. So it's our learning that we got to understand how to build that strategy against these non-performances. बैंक को 12% देना versus 9% देना. कहाँ से देते हो? प्रॉफिट से देते हो. ये सुनो, राइट? किसी इन्वेस्टर से पैसे लेना, ये भी प्रॉफिट से दे रहे हो. किसी एम्प्लॉय को पैसे देना, ये भी प्रॉफिट से दे रहे हो. Right? So it's very important to look at all the parameters while you're building that budget, while you're planning the scale of your organization. Now we've seen that any company, now when I say any company, I'm talking about
genuinely any sector, any company operating in India, from wherever you are, whatever scale that you are, if you are at 10 crores, you can reach 100 crores in 3 years. 3 साल, 750 से ज़्यादा केसेस हैं. मैन्युफैक्चरिंग, सोलर, ट्रेड, ओके, सर्विसेज, प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेसेस, 3 साल में आप 100 करोड़ पहुंच सकते हो. और ये मैकेनिक्स प्रूव हो चुका है. अगर प्रूव हो रहा है तो वो करना चाहिए. पर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्यों नहीं अप्लाई होते? क्योंकि मेरे को पुराने तरीकों से जिंदगी जीने की आदत है, वैसे काम करने की भी आदत है. मैं नए तरीके अपनाने नहीं चाहता. And it is insanity, right? If I use old methods to achieve new results, it is bloody insanity. Okay? So if you intend to work, the word strategy needs to be looked at 3 years. It is not a 1-year strategy. Is that okay? Strategy is made in boardroom. Tactics are made on the field. Strategy is made on the boardroom. Tactics are done in the field. So tactic पे काम करना ये मैनेजर का काम है. Yeah, tactics पे काम करना. Now let's look at this in milestones, goals. I don't have to tell you milestones, goals का मतलब क्या है. मेरे को एक जगह पे एक तारीख पे पहुंचना है, उसके पीछे मेरे को ये 2-4 चीजें करनी है. That's milestone. उस milestones को अगर governance नहीं रहे, मतलब क्या है governance? I'm explaining this on purpose. अगर मैं सिग्नल जंप करता हूँ, मेरे को 500 रुपया देना है, 500 जो भी. Yes or no? ये कब से है? पहले 200 था, फिर 100, पहले 100 था, फिर 200 हुआ, फिर 500 हुआ, अभी 1000 हो गया. Am I correct? Yes or no? पर सिग्नल जंप करने में पेनल्टी है. ये है कि नहीं? That is governance. अच्छा, इस गवर्नेंस को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव किया गया. पहले क्या किया गया? पहले चलान दिया, फिर कुछ कैमरा लगाया, फिर डिजिटल दिया. अब तो कुछ भी नहीं होता, खड़ा के होता, सीधा घर पे आ जाता था चलान. ये सुनो, दिस इज हाउ यू इंप्रूव गवर्नेंस. इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नेंस चलता नहीं. नहीं, लोग सुनते नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि लोग सुनते नहीं है, सिग्नल जंप करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि तुम बंद कर दो कि चलान लेना. यू कीप इंप्रूविंग योर गवर्नेंस. इज दैट ओके? अब लोग क्या होते हैं, थक जाते हैं. अपने को ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. सब मैंने रूल लगा दिया, सबने फॉलो कर दिया. खुद का पैदा किया बच्चा भी नहीं सुनता ऐसा, तो एम्प्लॉइज कहां से सुनेंगे? डू यू एग्री? ऐसा नो? इज इट फैक्चुअल? सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी गॉट टू टेक द गवर्नेंस ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, एंड दिस ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स पेशेंस, एंड दिस पेशेंस विल कम फ्रॉम द वैल्यूज दैट यू पुट इन. इफ दिस वैल्यू इज नॉट क्लियर, or let's go there. If the values are not clear, then you will not remain persistent in the growth process. Okay, फिर shortcut मारने की कोशिश करते हैं. Shortcut is not the key. Consistency is the key. And consistently for 1000 days. Is that okay? कितने मारवाड़ी भाई बंधु हैं यहाँ पे? कोई है? या कहा जाता है ना आपके मारवाड़ी लैंग्वेज में नहीं कहा जाता कि भाई 1000 दिन चल गया तो चल गया. पहले साल में लक्ष्मी, दूसरे साल में सरस्वती, तीसरे में राक्षस, 3 साल के बाद ये तो धंधा चल गया. शादी भी वैसी हुई. So fundamentally governance has to be improved constantly. That's how you make. Now because there is a governance, you start building on projects based on governance. So project का नाम क्या हो सकता है? Okay, एक प्रोजेक्ट है कॉस्ट सेविंग, एक प्रोजेक्ट है, उस पे कंपनी काम कर रही है. दूसरा हो सकता है एक्सपेंशन, ऐसा प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर सकती है. नाउ देन गोज फॉरवर्ड इज माय एसओपी. एसओपी तो अपन इंजीनियर, कितने इंजीनियर लोग, you know, we are so deadly dependent on these SOPs. My dear, your processes are written to achieve the goal. So what is more important? Your processes are written to achieve the goal. So goal is important ki process. Hello? Engineer mindset. इसलिए पूछा. ये धंधे वाले का mindset नहीं है, ये इंजीनियर का माइंडसेट. धंधे वाला बोलता है मेरे को गोल पे पहुंचना है, प्रोसेस इंप्रूव करते रहो ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. इज दैट ओके? आप तय कर लो इंजीनियर बनना है कि धंधे वाला बनना है. हाँ, वो मतलब घर से निकलते वक्त क्लियर रहो कि मैं हूं कौन, ताकि वैसी हरकत करें.
right? Based on that, we need to have the budgets. And below and bottom of the pyramid is the profits. But if you don't plan this for your year, नीचे आप 10 करोड़ का धंधा होगा, नहीं सर हमारा पैट 15% 20% है, पर जेब में पैसा नहीं है. Yes or no? जेब में मेरे पैसा नहीं, वो छोड़ के कुछ भी बोलो. Why? Because my cash flows are always in issues. I have money lying in my supply. I have money lying in my stocks. And worst part, money with my customer. But if tomorrow I say that your son wants to go to some place where 2 लाख रुपीस खर्चा है, आप उसी अकाउंट से खड़ करके पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि अपना हक है उस पे, पर कैश फ्लो नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है. Is that okay? So it's very important that we start implementing the budgeting which has annual operating plan. Excel sheet or English क्या है? Business journeys between emotions and economics क्या है? If you have pen and paper, write it down. Business journeys are about emotions and economics. सही emotion will lead to सही economics. अगर process सही बिठाया गया, a right emotion will build right economics. Okay? Now I'm going to take you to a simple question. Let's look at this. ये 3 अलग roles हैं. इस pyramid पे काम करने वाले. Sorry? Business. Oh, okay. I'll repeat. No worries, I'll repeat. I said business is all about emotions to economics. Right emotions will lead to right economics. आप खुद से पूछो, जब भी आपका दिमाग सटका हुआ है, धंधे में कुछ ना कुछ गलत करते हैं. Yes or no? If you have less stability in your heart and your mind, your business is also going to be unstable. Similarly is with your people. अच्छा, जितनी अनस्टेबिलिटी टीम में है, उतनी अनस्टेबिलिटी बैलेंस शीट में. इतनी क्लियर. सो बैलेंस शीट इज एन आउटपुट. उस पे बैठ के वो चेंज है ना. रोज बैलेंस शीट को देखूंगा तो चेंज होगी क्या? नहीं. एक्शन चेंजेस आर टू बी डन इन ईयर. इनपुट नीड्स टू बी इनपुट. And management practices allow you to make. Let's say there are 3 stages, 3 clear jobs. 3 clear jobs. ऊपर जो काम है ना, courage and decision making. और ज्यादा जितनी अकल है ना, उतना decision making poor होता है, क्योंकि वो डाउट लेता है ना. समझते हो? मेरे को अगर बहुत ज्यादा 50 किताबें पढ़ ली मैंने, इसलिए तो कंसल्टेंट भी बना ना मैं, क्योंकि डाउट बहुत करता था. Right? So the more you are educated, your awareness should help you to decide better. Okay? And courage is inherent in nature. Second is delegation and empowerment. ये वाली टीम को जो goals, milestones और governance कर रही है आपकी टीम में, अगर है भी, अगर इनको empowerment और decision making नहीं है, तो वो ना 7 को विश नहीं है वैसे वाला सीन. Is that okay? आपने बंदूक दे दी और गोली अपने पास जेब में रखी. There's no point. If they are not empowered to do the job, there's no point. Okay? You will be surprised. We see the problems in 2 generations also. Papa versus beta. Papa बोलते हैं मैंने इसको पूरा empowerment is required. मेरे को काहे को नहीं पता, मेरे को काहे को पूछा नहीं. And that khichdi is always a problem. Always a problem. So you have hired people. And for parents, it is your son or daughter. If you don't empower them, what is the magic? So it's important that the second line, what is this line? Second line, needs to be empowered and delegated with jobs. And third is discipline and engagement. Constant engagement जब तक नहीं रहेगा, तब तक motivation नहीं चलता. अब ये सब करने के लिए उस धंधे वाले का विजन बड़ा होना चाहिए. Is that okay? वो बोले नहीं मेरे को 10 करोड़ का धंधा करना है, बोले छोड़ ये सब करने की जरूरत नहीं है. Is that okay? This is not a mechanism that allows you to build institutions. Is that okay? This mechanism will allow you to build institutions, big institutions. 5-10 करोड़ 15 करोड़ के लिए ये सब की जरूरत नहीं है. Is that okay? फिर तो एक अकेला बंदा चला रहा है अपने हिसाब किताब. और 10-5 करोड़ का धंधा करने वाला इंडियन बिजनेसमैन, उसके पास कम से कम एक बार तो घूमने जाता है, तो वो सेटल्ड आदमी. आप समझते हो? उसमें और नौकरी करने वाले में फर्क नहीं है.
SME 10% का कमाए, 10% कम मिलता है पर चलो 10% पे मतलब 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, इज दैट ओके? फिर 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, ये सैलरी किसी वाइस प्रेसिडेंट की होती है किसी अच्छे कंपनी। सो डोंट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, ओके? सो बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू बिल्ड, राइट? That takes us to simple question. How many of you would buy this car? खरीदना या गाड़ी खरीदना है? नहीं, पैसा है जेब में, टेंशन मत लो। अरे खाओ कंजूसी क्या कर रहे हो? खरीदना है? Yes, no? Yes? Why would you buy? What will be the reason of buying this car? For betterment of our future. Betterment of future, okay? Status? Status, okay? It's a statement. It's a statement. That's the only thing. It's a statement. Is anybody from behind? Is there anyone from behind? Drive with pleasure, okay? Somebody from behind. Why would you buy this car? Assuming you have money, is that okay? Why would you buy? Why would you buy this car? Speed, okay. Somebody wants to buy this speed. Showing the achievements. Sorry? Showing the achievements. Showing our achievements to the world. Very good, very good. अच्छा एक चेंज करते हैं अभी इसमें ब्रेक नहीं। मैं पूकर देने को तैयार। कितने लोग लेना चाहते हैं? I'm going to give you this car free, but it does not have brakes. साहब मैं खुद आके लगा दूंगा ऐसा। पर हाथ कितने टॉप हुए देखे क्या आपने? ऐसा थोड़ी किधर का गैरेज में जाके ब्रेक लगा सकते हो, गाड़ी में तो देखो। Okay, but fundamentally you saw the number of people who dropped their hands. Why? Which means the whole reason why you are building a product is for its efficiency and impact. Is that okay? What are the words? Efficiency and impact, right? अब simple question है, in all my customer life circle journey, okay, मैं उस कस्टमर के कौन से स्टेज पे बैठा हूं उससे डिफाइन कर रहा हूं इम्पैक्ट क्या है। इज दैट ओके? राइट? जैसे घर बनाते वक्त ईंट वर्सेस पर्दे, अगर हम एक घर बना रहे हैं ईंट वर्सेस पर्दे, आपने बोला प्लेजर, आपने बोला मेरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, इट्स कॉल्ड रिकॉग्निशन, इट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड। सो इन अ कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू, सिग्निफिकेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, achievement plays a very important role, right? Fundamentally in your product creation journey the job is between efficiency and impact. आप कितनी efficiency ला रहे हो उस कस्टमर के लाइफ साइकिल में आपके प्रोडक्ट से, और कितना impact डाल रहे हो। There are two words, I don't know if you know these two words, consumers and customers का फर्क क्या है? कंज्यूमर्स और कस्टमर्स का फर्क क्या है? Now, tell me, you say so. Yes, go ahead. Sorry? The person who purchases the thing that is, so you use the thing that is consumer, purchase the thing that is customer. Okay. पहला कंज्यूमर तो सही बोला। Consumer is the end user and customer is the middle user or trader. Okay, go ahead. He has something. Well, you wanted to share something? Customer is not always consumer. ये भी सही है. Okay. It is a potential customer. It is a potential? No. Consumer is a Sorry. Okay. There is only one consumer. The guy who pays taxes. The rest is all customers. Value chain is all customers. Is that okay? The entire value chain, right from raw material till the end, is a customer. Everybody is customer to somebody. But there is only one consumer. Last the tax भर रहा है. Is that okay? Right?
इसीलिए कस्टमर कंपनीज हु हैव गुड कंज्यूमर बेस बिकम फॉर्च्यून 500 कंपनीज. क्या है? कंपनीज हु हैव गुड कंज्यूमर बेस बिकम फॉर्च्यून, बिकॉज कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर हाथ में, मार्केट का कंट्रोल, दे ड्राइव द मार्केट. And companies who serve that end consumer are all the customer value chain. Is that okay? Now why am I sharing this with you? I'll tell you. There is a simple tool I'm going to show. I want you to click a photograph of this. Click a photograph of this. Whatever products that you are making, आप खुद को पहले evaluate करो कि किधर हो. Okay? Customer productivity versus purchase. कि मैं जब कस्टमर मेरे को बाई कर रहा है तो उसका प्रोडक्टिविटी कितना इंप्रूव हो रहा है, राइट? कस्टमर प्रोडक्टिविटी वर्सेस डिलीवरी, मैं उसको कितना टेंशन फ्री डिलीवरी दे रहा हूं. नहीं तो 50 बार फोन कर रहा है, मैं 50 बार बोल रहा हूं गाड़ी निकल गई, उसको भरोसा ही नहीं कि मेरा गाड़ी पहुंचेगा. अच्छा माल पहुंच, राइट? कस्टमर प्रोडक्टिविटी वर्सेस यूसेज. अगर यूसेज में आपके घर में झाड़ू है, ये सुनो, झाड़ू कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना घर को साफ करने के. 2 दिन कचरा रहेगा घर में, चलेगा क्या? सो यूसेज क्या है, उसके बेसिस पे मेरी प्राइसिंग भी तय होती है, राइट? लेट्स लुक एट कस्टमर प्रोडक्टिविटी वर्सेस सप्लीमेंट. व्हाई आई एम शेयरिंग, गिविंग माय प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द वैल्यू एडिशन जिससे अपसेल कर पाऊं, क्रॉस सेल कर पाऊं. एंड लास्ट इज मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल. ऐसे 6 लीवर्स हैं. सिंप्लिसिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस ऑफ योर प्रोडक्ट्स, राइट? यू कैन इंप्रूव रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो. यू कैन इंप्रूव द फन एंड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट. एनवायरमेंटल योर इन्फ्लुएंस पैरामीटर्स. दिस इज व्हाट यू हैव टू मार्केट टू योर कस्टमर्स सो दैट दे कैन गेट अट्रैक्टेड. इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए? स्ट्रेटेजिक टूल्स हेल्प यू टू बिल्ड राइट प्रोडक्ट्स. दिमाग के फितूर से प्रोडक्ट नहीं बनता, है ना? क्योंकि सुबह सुबह बात कंसल्टिंग कंपनी रहे तो मेरे को भी बहुत आइडिया आती है रोज पे, बट आई डोंट गेट इनटू प्रोडक्ट्स लाइक दैट बिकॉज आफ्टर रीचिंग स्पेंडिंग मनी में बोला हुआ माल बनाते. कस्टमर बेस, अच्छा कस्टमर डूबा अपन डूबे, बड़ा रिस्क है क्या? नहीं, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये डूबेंगे नहीं, ऐसा लिखा नहीं किधर. Is that okay? The fact is anybody can do. Simple as that. But you know, in a Parsi school, and a lot of people were Parsis and Gujaratis in my Parsis, Gujaratis, Marwadis. So there's a friend of mine. His name used to go and play Monopoly at his house. बड़ा सा घर था Hindu colony. And so while we were playing Monopoly, I was winning. You should become my partner. And I said okay. But his grandfather, who was sitting quietly on that dhoti, okay, heard him and he said, Raghu, अपनी नाड़ी अपने हाथ में रख. अब ये कौन सी आइडिया स्कूल में पढ़ने मिलेगा कि कंज्यूमर्स को हाथ में रखो, अपनी नाड़ी अपने हाथ में. And by the way, after that I went to universities, wrote PhDs, I went to Stanford. ये सीख नहीं मिली मेरे को उधर. So my humble request to all of you is, okay, I'm going to do a simple exercise with all of you right now. I want you to take a pen and paper. Do you have a pen and paper with you right now? Yeah? I want you to create, I am going to give you, rather my team is going to give you this tool, okay? Quickly, can you please distribute? Please distribute. They're going to give you a tool, okay? And you can take this tool, there's no problems with that. And what you're going to do, I'll tell you. It's called raise, reduce, create, eliminate. Is it there? It's called raise, reduce, create, eliminate. Yes? Raise का मतलब क्या है? It's mathematical calculation by the way. Raise का मतलब है अभी है, उसको बढ़ाना है. Reduce का मतलब है अभी है, उसको कम करना है. Create का मतलब अभी नहीं है, जो बढ़ाना है. और eliminate बताने की जरूरत नहीं है ना, division. निकाल देना. Right? So what is the job now? You will start writing down
raise, reduce, create, eliminate. You look at a tool और अपने अगले साल का गोल ध्यान में रखो कि मेरे को क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा, क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्या डिवाइड करना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या डिवाइड करना पड़ेगा. You start writing now. Even if you get right now 4 points for yourself, you have started the strategic thinking process. Is that okay? Even if you get. अच्छा, सोचने का तरीका क्या है? People, process, systems, market, right? Processes, SOPs, governance. कोई नया project. Start thinking about all of these things and start writing down the activities. अभी उस zone में हो, अगर ये बोलोगे कि मैं जाकर बाद में करता हूँ, तो उस zone से निकल जाओगे. So इसलिए अभी करो. Okay, and immediately after this, I will give you a test for you to understand your financial standpoint right now. There's a simple algorithm test. There's a company called Soma.ai who does this test. And we have asked them to serve it. They'll give you the links. There is a QR code. Once you write this down, there is a QR code. Pick this QR code and you'll get the link in front of you. पहले ये exercise खत्म करो. Thank you. शिवानंदा एक दिन में What is external and internal? External मतलब external चीजें आपसे छोड़ के आपकी कंपनी के बाहर. Internal is all internal. So external effects that you can put in market, like improving my warranties, is external impact. Internal impact is improving my competency of my team members. शिवानंदा फाइनेंशियल हेल्थ का ये कहाँ है स्कैनर? So I'm assuming that you've written it down. If you've not written it down, it's fine. Have you written down certain actions? So your thought process is started now. Okay? I'm going to give you a scanner. Scanner is, it's called financial health checkup. Financially, how is your business looking? Okay, just scan it quickly. Okay, my team will give you the scanners.
or else give me a moment, I will. Here, this is the scanner. So based on your management habits, it will detect how your finances are. Based on your financial habits, it will detect your finances are. Error येतोय. सर थोड़ा सर थोड़ा मोबाइल वर्कआउट करने के थैंक यू. ठीक है. Is it happening?
Errors? ठीक है, we'll move forward then. Whatever error, if there's any error that's coming in, you now have the link. You can do it later also. That's not a problem. Okay. But very important is on the card. If you see, no, if you look at the card that we've given you, it also has this QR has a complete explanation of the video of how to use this tool. Okay. Because of lack of time, we cannot do it right now. But you can use this. Okay. This is a very good tool. You should use. And likewise, when we conduct the annual operating session for businesses that happens every 18th and 19th of the month, we see a lot of businesses come over and prepared for the entire year. मतलब 200-250 से ज़्यादा लोग businesses वहाँ पे आते हैं to make this, you know, budgeting for every year. This is the next tool. The next tool is called product बनाते वक्त 4 important categories को सोचना. Okay, category 1, it's called utility. मेरे कस्टमर की यूटिलिटी कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा यूटिलिटी उतना ज़्यादा पोटेंशियल. Is that okay? Second, mass pricing, mass costing और adoption. अगर प्रोडक्ट अडॉप्ट करने में तकलीफ हो रही है तो पैसा वेस्ट जाना है. HTC का फोन पता है, वो टच फोन ऐसा उंगली लगती नहीं थी, स्टाइलस याद है. पर सबसे पहला इनोवेटर कौन था? वो सैमसंग इनोवेटर नहीं था, HTC इनोवेटर था. पर HTC को मिला नहीं था. किसको मिला? सैमसंग को मिला. राइट. अच्छा, इंडिया में वो सैटेलाइट टीवी लाया किसने? डिश वाले. डिश टीवी लाया, जी लाया. पर मार्केट लीडर कौन है? टाटा स्काई. So if you actually notice the process of product creation, जब तक adoption सही नहीं, जो पहला वाला टूल दिखाया बायस यूटिलिटी मैप, अगर वो adoption प्रोडक्ट का सही नहीं कर पा रहे लोग, तब प्रोडक्ट बेचने में हमेशा तकलीफ होगी. Is that okay? इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगती है, बहुत ज्यादा कस्टमर को समझाना पड़ता है, बहुत ज्यादा क्वालिटी का डंका बजाना पड़ता है. Is that okay? राइट? ये बहुत करना पड़ता है. तो ये प्रोडक्ट स्टेज पे कैसे इंप्रूव किया जाए? यूटिलिटी को समझ के आप रिक्वेस्ट बस इतना है कि प्लीज आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट मत बनाओ. आप कस्टमर को जाके पूछिए, उनसे इंटरव्यू लीजिए, उनके इमोशंस को समझिए, उनके पैसे के हिसाब किताब को समझिए और फिर प्रोडक्ट बनाओ. मेरे को आता है और मार्केट में चलता है, जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करने. इसी वजह से कैश फ्लो की इशू आ जाता है. राइट. सो दिस इज द नेक्स्ट टूल. प्राइसिंग हमेशा मास रखो, कॉस्टिंग हमेशा मास रखो. बनाने से पहले तय करो कि मार्केट में कैसे अडॉप्ट होगा ये प्रोडक्ट. ओके. अच्छा, इसके लिए बहुत लोग चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ऐसा नहीं. इसके लिए चाहिए लगन और डिसिप्लिन. इज दैट ओके? अपने को लगता है ये बहुत बड़े बड़े लोगों का काम है, ऐसा कुछ नहीं. अगर सिर्फ बड़े लोगों का काम होता तो यूनिकॉर्न नहीं बनते. 4-5 साल में 1000 करोड़ का धंधा खड़ा नहीं करते बच्चे. इसके लिए लगन और डिसिप्लिन की जरूरत है, सही तरीके से सोचने की जरूरत है. राइट. लेट्स लुक एट 3 थिंग्स दैट आई definitely will tell all the business owners while you are hiring. ओके. एक तो देखो, क्रिएशन में प्रोडक्ट बना रहे हो, दूसरा हायर कर रहे हो, है ना. अपन बोलते हैं लोग अच्छे नहीं मिलते. कितने लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते? हाथ ऊपर करो. प्लीज रेज योर हैंड. जेन्युइनली प्लीज रेज योर. वी डोंट गेट गुड पीपल. प्लीज रेज योर हैंड. Please tell me the reason of why you are good. Then please first tell me the reason why you are good. Why should I mean, as simple as that. I am a boy, there is a girl there. She first has to be attractive. Are you getting my point? तिचं मन चांगलं आहे, ती सुंदर आहे, ते सगळं नंतर. पहिले she has to be attractive. Yes or no? All men in the room. Yes or no? She has to be attractive, no? वो ऐसा फटे टूटे कपड़े में आएगी, तुम्हारे को शादी करें, तुम करोगे क्या? नहीं करोगे ना. So first is you being attractive is a business proposition. If you're not attractive as a business proposition, why would a young guy, this guy who is here, what, 19-20 right now, 80, why would he get attracted to your company? Am I making sense? Why would he get attracted? So first is creating a company that is attracting. सेकेंड, 140 करोड़ की आबादी में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे तो किधर मिलेंगे? सोमालिया में.
ट्रस्ट यू मी, इंटरव्यू को जब ऑब्जर्व करते हैं हम कुछ काम करने से पहले ना, हम पूछते हैं उनको क्या आप इंटरव्यू कैसे लेते हो बताओ। तो इंटरव्यू में सबसे फेमस सवाल आज तक क्या निकले बताता हूँ, क्या करते थे, किधर रहते हो, घर में कौन कौन है, कितना पगार चाहिए। भाई तेरे को शादी बनानी है उससे, तू ना कॉम्पिटेंसी की कोई सवाल पूछ रहा है, ना स्किल का कोई सवाल पूछ रहा है, ना नॉलेज अंडरस्टैंड कर रहा है, ना उसका कल्चर अंडरस्टैंड कर रहा है, ना उसकी बिलीफ अंडरस्टैंड कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो अपन कमोडिटी की तरह हायर करते हैं। कैसे? तो दो लोग चाहिए, कमोडिटी है क्या, कमोडिटी की तरह हायर करते हैं, एंड दैट्स वेरी डेंजरस नो, राइट? एंड देन वी से अच्छे लोग नहीं मिलते। नो, वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट राइट पीपल, दैट्स अ प्रॉब्लम। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर अवेलेबल, दे आर रेडी टू कम, but if the proposition is right. Is that okay? Yeah? So that but if the proposition, we have to make that. Frontline में क्या देखो, high intention देखो, high discipline, working together and energetic. ये 4 behaviors होने चाहिए जब आप frontline पे किसी को ले रहे हो. Is that okay? Frontline पे किसी को ले रहे हो, अगर वो energetic आदमी नहीं है, discipline नहीं है उसमें, right? एक साथ काम करने की अकल नहीं है, and more importantly working साथ, you know, energetic नहीं है, वो बंदे को मत लो, कितना भी कॉम्पिटेंट बंदा है, कितने भी अच्छे कॉलेज से आया, मत लो, क्योंकि अंदर आने के बाद तुमको सब सिखाना ही है। Is that okay? अंदर आने के बाद when he comes inside as a frontliner, you'll have to teach him your product, you'll have to teach him his process, teach your system, you'll have to anyway teach. ये तो कम से कम घर से लेके आए। Is that okay? Right? So don't take people who do not have this. Second line, sharp प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट लोग। अभी अपने को स्ट्रीट स्मार्ट लोगों का डर लगता है, ये सुनो, अपन बोलते हैं बहुत शाना है, बाबा वो जॉब का जरूरत है, वो शाना होना जरूरी है। शाने को कैसे संभालने का ये अकल अपने को आनी है। इज दैट ओके? सो डोंट शाय अवे फ्रॉम दोस शार्प पीपल, वी नीड शार्प पीपल टू मेक थिंग्स फॉरवर्ड, राइट? नाउ सेकंड, एक्शन टेकर्स, फटाफट वो गलती हो गई तो सॉरी बोल देंगे, ऐसे वाले सॉरी होने के डर में काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। There are two kind of characters, I don't know if you've observed, yeah? They'll say sorry सर गलती हो गई, इसको सही करता हूँ, पर वो मैं गलती हो जाएगी इसलिए मैं करूंगा नहीं, ऐसे वाले लोग नहीं हो। And that will only happen if you give him an environment to flourish. If you don't give him an environment to flourish, it's not going to happen, right? Next, थर्ड लेवल के लोग कौन है? विजनरी थिंकर्स, स्ट्रैटेजिकली और रिस्क टेकर्स। ये तीसरे लेवल का कैटेगरी चाहिए, एग्जैक्टली आपके नीचे, एग्जैक्टली आपके नीचे। somebody who is visionary like you, somebody who is a strategic thinker, somebody who can take risk। अब ये मिक्सचर जिधर करोगे ना, उधर खिचड़ी चालू हो जाएगी मैन पावर। दो तरीके हैं, या तो आप इनको बाहर से खरीदो, या तो आप बाहर से खरीदो या अंदर बनाओ। इज दैट ओके? या तो आप बाहर से खरीदो या अंदर बनाओ। बाहर से खरीदोगे 30% और 70% अगर अंदर बनाओगे तो ग्रोथ स्लो चलती है। लॉयल्टी ऊपर रहती है, कॉन्फिडेंस नीचे। क्या है? लॉयल्टी ऊपर, कॉन्फिडेंस नीचे, तो धीरे धीरे ग्रो होगा। बाहर से आओगे, बाहर से बहुत ज्यादा लोग लोगे, अंदर कम डेवलप करोगे तो लॉयल्टी नहीं रहेगी, अनस्टेबल रहता है स्ट्रक्चर। ये आएगा चला जाएगा, ये आएगा चला जाएगा, 2-3 साल में चला जाएगा। अब आपको एज बिजनेस ओनर्स एक अच्छा प्लान जब तक नहीं है बैलेंस करने का, तब तक ये स्टेबिलिटी नहीं है when it comes to people. Is that okay? Hey, by the way, is it good what I'm sharing with you? Yes, no? Hello, everybody? Yes, no? Let's look at triggers of profitability now, okay? We believe any business has only 3 triggers. It has to make money every day, it has to process that money every day and collect that money every day. Is that okay? 3 buckets only. रोज पैसा बनना चाहिए, रोज प्रोसेस होना चाहिए, रोज कलेक्ट होना चाहिए। और इस लेयर के इर्द गिर्द अगर एक अच्छा इमोशन तो काम करने में मजा आता है। So what are the 2 ultimate goals? Making money and being happy. इसके अलावा कुछ है क्या? Making money and being happy. Is that okay? Yeah. So while making money,
if you are able to focus on building business every day, sales every day होना चाहिए, number of invoices every day निकलने चाहिए. अब कुछ लोग हैं प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे कोई है प्रोजेक्ट में कि सर हम तो चार प्रोजेक्ट साल में करते हैं, हमारा एवरीडे इनवॉइस कैसे निकलेगा? इज दैट ओके? तो एवरीडे बिलिंग होनी चाहिए, एवरीडे बिलिंग होनी चाहिए. बिल को तो काट सकते हो, राइट? सॉरी, क्या एवरीडे बिलिंग होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? इनवॉइस नहीं होगा कस्टमर को, बिल तो मार सकते हो. पैसा 1 क्वार्टर के बाद आएगा, पैसा 7 दिन के बाद आएगा, पर बिल तो रोज मारो ताकि आदत लगे रोज का रोज काम करने की. वरना राम भरोसे हिंदू होटल, प्रोजेक्ट का डेडलाइन नजदीक आ गया, फिर भागम दौड़ी शुरू, अकाउंट में पैसे कम है, फिर भागम दौड़ी शुरू. आदत नहीं है. यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के ये तय करते हैं कि आज मैं आई एम गोइंग टू ब्रश टुडे? आदत है ना? कोई है तो प्लीज बाहर जाना. So you don't, because it's a habit, you got to make it habit. The bills have to be cut every day. The process has to be done every day. Money has to be collected every day. कितने लोग यहाँ पे अकाउंट्स टीम को लगाते फॉलो अप करने? कोई है? अकाउंट टीम, अकाउंट से बंदा फोन करता है कस्टमर को, अरे जिसने बेचा वो पैसा लेगा ना. Yes or no? So we do small management mistakes which doesn't allow us to get into the right spirit. I'm going to give you these 8 triggers. Have a look at this. इसका भी फोटोग्राफ निकाल लेना और इस साल के प्लानिंग में यूज कर देना. Okay? So what we're saying is we will improve this year by 1% everywhere. Okay? Price increase 1%, volume increase 1%, COGS reduction 1%, overhead reduction 1%. We'll go debtors days reduction 1%, 1 day, reduction in stock days for 1 day, and increase in creditors days for 1 day. You make this logic. अब भी आपके turnover के साथ, how many, anybody here who is 10 crores and above? Just raise your hand. 10 crores and above. Okay, 10 crores and above. So what's the revenue? 15. Okay, 15 crores. In your 15 crores, if you do this exercise right now, मोटा calculate कर लो, कम से कम 40 लाख रुपए बचाओ. कितना? कम से कम. अच्छा, कोई भी मार्केटिंग करने की जरूरत, कोई सेल्स करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा तांडव कंसल्टेंट लाने की कोई जरूरत नहीं है. बस ये कैलकुलेशन करो और इस पे लग जाओ. आप मेरे को बोल रहे हो कि आप COGS 1% नहीं बचा सकते? 30 दिन में पैसे दे रहे हो, सारे वेंडर को फोन करके ये नहीं बोल सकते मैं 31 दिन में पैसे दूंगा और 31 दिन पे दो. कौन सा आदमी है जो नहीं मानेगा कि भाई 30 दिन में नहीं 31 दिन में पैसे आएंगे? अच्छा, मेरे को बताओ, प्राइस इंक्रीज 1%, 999 का प्राइस है एक पैंट का, उसका 1% कितना हुआ? 9 पैसा. The overall impact. Now this is called leveraging money. This is called leveraging money. This is how you start improving efficiency. And you set up targets right at the end. Now we have seen when we start working in consulting, ये 1% नहीं 5% तक बच सकता है, पर वो 5% के लिए जो डिसिप्लिन लगनी है वो टीम में होती नहीं, राइट? या तो अपन ये एंड पे रहते हैं या तो ये एंड पे रहते हैं, अपन बीच में आदत नहीं है हैबिट. Have you copied this? Click कर दिया? Okay, now let's go to understand what we do. This is what we do. We train, we coach, we handhold you, we consult, we be the alternate board of the company. Any company that is between 50 lakh rupees to 250 lakh, 50 crores. This is the job that SI does. I don't know if you've noticed, मैं कोई सूट वूट में नहीं हूँ, स्लीव रोल करके काम करते हैं. That's what we do. Okay? So people who are interested, I'm going to share something that we're going to do every year, around 6 years. This is the 6th year we are doing that event. It's going to happen in Pune on 18th and 19th. Okay? It's called Aram. Aram because the new year is beginning, and 18th and 19th. 19th is Raja Shiva Chhatrapati's birthday. So every year the event happens on the same day. Okay? As I said, it is going to happen once a year
So if you would want to participate, I'll tell you everything about that event and then take a conscious call. Can I request my team to please give the brochures? Thank you. So I've already explained you what is RM. इस ब्रोशर में जो एक पेज है उसमें सारी डिटेल्स है. Have a look at that. I've already shared कि ये क्यों 19-20 को होता है. Let's look at this. It is the total participants that come are देख ले पिकअप. डालने So if you look at this is what happens. Small and medium enterprises are there with their teams. तो teams कौन सी होती है ये भी बताऊंगा. Interactive live budget exercise. I'll share the Excel sheet also. जो template पे वो budget भरा जाता है. Okay. Expert guidance, of course. People like me and probably people far better than me are there to do this. 30 odd chartered accountants and cost management accountants. So every table there is a cost management accountant or a chartered accountant who is helping you to build your budget. Hybrid model है, इसका मतलब 10 तारीख को अभी कल या परसों से डिजिटली शुरू हो जाएगा. ऐसे 3 बैचेस ऑलरेडी डिजिटली खत्म हो चुके हैं और एक बैच 10 तारीख को शुरू होगी. एवरीडे मॉर्निंग आपको बजट का टेम्पलेट कैसे भरना है ये सिखाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 18 तक आपका बजट पूरा कंप्लीट हो जाए. 18-19 आप क्यों आओगे? क्योंकि उस बजट को दिखा के वैलिडेट करना एक्सपर्ट्स के साथ कि भाई मैंने सही किया है नहीं किया है, उनसे गाइडेंस लेना ताकि आप 20 फरवरी से रेडी हो अगले पूरे साल के लिए कि कौन सी एक्शंस कैसे लेनी. दैट्स द जॉब. As I said, 40+ SME business experts, 10 days. ये सारी चीजें मैंने बता दी है आपको. पर दो important aspects हैं जहाँ यहाँ पे क्या होने वाला है. This is the special talk that will happen with Bombay Stock Exchange head राधा कृतिवासन कि एक SME IPO तक कैसे पहुँचता है. ओके, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ताकि आप जब आगे बढ़ना चाहो तो आप सीधा उनसे सुन रहे हो. किसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट, उनसे सुन रहे हो कि कैसे करना है. सो देयर इज अ क्वेश्चन आंसर राउंड लाइक दिस. सेकंड इज the night of failures where you will be able to speak to business owners who have been just like in the 5-7 years 100 करोड़ 1000 करोड़ पे पहुंचे हैं. इनके साथ कुछ नए अगर ब्रांड्स पता होंगे आपको तो जंबो किंग पता है. Jumbo King Sona, that consulting project is also completed by us, so he's there. There is Amit Arukar, who is also was a participant 5 years back in Aram. Today runs a 250 crores company, right? When we started, he was around 18 crores. So all of them will share their failures, not their success. कि हमने गलतियां किधर करी और ये आप करते हो गलतियां मत करो. So that's the session, and of course customized template. I'll share that template with you right now.
नाउ व्हाट इज द आइडियल साइज? कौन बैठना चाहिए? जिनके पास टीम्स नहीं है, बिल्कुल जिनके पास टीम्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले शुरू कर सकते हैं। पर जिनके पास टीम्स हैं वो अपने अकाउंटेंट के साथ बैठे, क्योंकि उनको डेटा भरने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास प्लांट हेड है तो प्लांट हेड आ सकता है, बैठ सकता है आपके साथ। अगर आपके पास सेल्स हेड है या सेल्स मैनेजर है जो सेल्स करता है वो बैठ सकता है, ताकि सेल्स की प्लानिंग हो सके। ओके, अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो, ऐसा सेटअप है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली मेरे 2-4 OEM है और 2-4 OEM मेरे को शेड्यूल दे देते हैं, मैं वैसा करता हूँ, तो अपने प्रोडक्शन वाले को बिठाइए, ठीक है, अपने परचेस वाले को बिठाइए। जहाँ पे भी फ्रंट सेलिंग ज़्यादा है वहाँ सेल्स और मार्केटिंग को बिठाइए। जहाँ पे भी ऑपरेशन ज़्यादा है वहाँ पे बैक एंड टीम के कोई हेड्स को बिठाइए। ये आइडियल है। बट कुछ लोग होते हैं जो पार्टनर्स के साथ आते हैं, क्योंकि 2 टीम्स बटी हुई रहती है, मैं प्रोडक्शन देखता हूँ, ये सेल्स देखता है, वो वाला हिसाब किताब, वो भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। Quickly also letting you know who will be the people involved in this. They're experts and far better people who do this job. You will see a lot of people who have done this job over a period of time for a lot of the processes. Okay. Now, incidentally, I also have somebody who has been attending RM for last 5 years, 4 years. Okay. So is Unmesh there? Ganesh there? Unmesh, Ganesh, why don't you share? 4 साल से आप ये कर रहे हो हमारे साथ. Why don't you share your feedback? Come on. I'll just share with your opinions. Come. They have a brand called Busy Master. They have 2 vision inspection machines. Okay, their plant is in Bosri here, and they've grown over a period of time. Every year they are growing. I think the journey started when you were at 4 crores. Yeah. And come. And I think this year they will close 16 crores. This is like 2 years? 2 years? 2.5 years? 3 years. So why don't you share what is your experience with RM? Basically, we have attended RM for last 4 years, and it is thanks to Yogesh sir, because of which we met together. Basically, Ganesh sir is the founder of Busy Master from Bharat Automation. So for past 10 years, he has been developing vision inspection products, machines. But we were more focusing on the SPMs, like every machine was different. But then later on, as a strategy, we decided that we will have our own products. So now we are focusing on products, and almost 500 machines we have sold all over India. And now we are participating in all the national exhibitions. And next year we are also planning for international exhibitions and exports. Basically, SRM has helped us to working together, because normally everyone has his own different vision. But now when we 3 of us are together, aligning the vision was very important. So we have been, Yogesh sir has been coaching us for past 2 years. So every month we have a meeting with him that what is the strategy that we are planning. And if we talk about RM, basically it has helped us to get into the minor details, and all our team now prepares their own budget for the next year. Like for example, if production wants some requirement, HR has some requirement, and when the sales is telling us that the target is this, so what is the resources that will be required, and how much is the percentage expenses that we can do for marketing, for sales, for exhibition. So now, instead of having a panic or changing the situation, so that is really around plus minus 10 to 15%. But we are aware that what we are doing is investing, and it is not an expense. So if you know that your balance sheet is taken care of, तो जो एक fear है और एक वो जो ये रहता है कि नहीं मैं सेल्स में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं एक्सटर्नल मैनपावर में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो अवॉइड हो जाता है। And we are confident enough कि अगर अभी नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर तो होने ही वाला है। Secondly, the eye opener is we are not planning for today or present, we are planning for the next year. So that has helped us to develop a lot of different technologies. And if we talk about the different, what is the future vision, I'll ask Ganesh sir to explain to you. Okay, so
So, sir, when we discussed in last, I think 2 years back, then we changed our strategy, and what we decided that we will make a standard product. So, what we did, we developed machines which a lot of people can use, same type of machines, and then we started making products. And then we, last year, we decided that we will sell almost 70-80% standard products. And that helped us to increase the speed of business and the turnover also. This year, next year, we are planning something around that we can decide in the exhibition. This around. So that we are deciding something around 25 CR. That will be the plan. And this time we are involved all our sales team, our account team, and other team also along with us. So that is there. And now we want to build a lot of cutting edge technology. So we are doing a lot of R&D on that. So that is also guiding on us on that. Yeah. Fantastic. Thank you very much. Now, the best part here is the number that was planned last year is getting achieved this year in spite of not doing how much SPM? How many SPMs did you do? So, which is 10%. For complete SPM company doing productized work, only 10% SPM is remaining. अब स्केल बढ़ेगा, अब तेजी से स्केल बढ़ेगा क्योंकि टाइम कम हो गया. Is that okay? Yeah. So thank you very much. Keep planning. Let's do some good work together. Thank you. So that's, because they were here in the exhibition, I think, and they were sitting through. I just thought, thank you very much for coming over. But fundamentally, if you notice, let's look at what are the plannings that are required to be done. If you notice, these are the key assumptions. ये प्रोडक्शन का टेम्पलेट है, इसलिए प्रोडक्शन दिख रहा है. अगर सर्विस है, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट है. नंबर ऑफ प्रोडक्शन डेज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज, सेलिंग प्राइस ऑफ मेन प्रोडक्ट, परचेज प्राइस, मेजॉरिटी, इंक्रीमेंट मंथ, विच इज इंक्रीमेंट परसेंटेज फॉर द एम्प्लॉइज, इंक्रीमेंट मंथ, न्यू इन्वेस्टमेंट, सीसी यूटिलाइजेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे कंसिडरेशंस पहले पेपर पे लिखे जाते हैं. इसका मतलब आपने ऑलरेडी तय कर दिया कि अगले साल कितना पैसा खर्चा करें. अब दुख की घटना होती है, इसको ज्यादा दुख की कम दुख, क्योंकि सिस्टम नहीं है ना अपने पास, राइट. इसको ज्यादा दुख, इसको दुख लगेगा, तो सब पैसा पर थंब रूल तो बना के रखो कि इसके ऊपर किसी को नहीं मिलेगा या इसके नीचे किसी को नहीं जाना. Then you can play when it has to be done. So that is done in your budgeting exercise, right? That is the infusion of capital. कोई नया कैपेक्स करना infusion है क्या कैपिटल का? Doubtful bad debts. मतलब समझ में आ गया कि अभी हिसाब किताब बंद हो गया है, कस्टमर का पैसा नहीं आना है, वो भी कंसिडर कर लो, राइट. स्लो मूविंग इन्वेंट्री, क्योंकि उससे कैश फ्लो पे इम्पैक्ट होने वाला है. एवरेज जीएसटी एंड परचेज सेल्स, राइट. All these parameters. अगर if I start explaining you the template, then I will do the CS job that will happen on 10th. But I'm going to tell you the parameters. If you actually look at planning piece, we do all the OPEX planning that is required. Okay? ये OPEX planning, supply chain, manufacturing, quality, development, design, all of that. कि क्या क्या करने वाले हैं, कौन से प्रोसेस में कितना वीकनेस है, इंप्रूवमेंट क्या करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट क्या इंप्रूव हो गया, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, राइट. दिस इज ऑटोमेटेड चार्ट. ये अपने आप भर के आएगा, अपने को कुछ नहीं करना, बट दिस इज ऑटोमेटेड वन. पूरा साल का प्रोजेक्शन, सीजन वाइज, सीजन का डिप्रिशिएशन हो रहा है, माल कभी कभी टाइम पे नहीं आता, उस वक्त पे जैसे रेनी सीजन में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से माल लेट होता है, वो कंडीशंस, ऑल दोस कंडीशंस यू विल बी एबल टू थिंक थ्रू एंड राइट डाउन ऑल
details around everything. Basically, we are creating your 31st March 2026 का बैलेंस शीट. Is that okay? कितने लोगों को चाहिए कि भैया मेरा बैलेंस शीट 26 का भी रेडी हो जाए? क्यों बताता हूं? ये जो कंट्रोल है ना तब आता है. धंधे पे कंट्रोल कब आएगा? तब आएगा कि मेरे नंबर मेरे सामने है जो तय किया हुआ है और उस पर लगा पड़ा हूं. सो सारी पूरी टीम भी लग पड़ती है उसके पीछे. राइट नाउ दिस इज सेल्स. प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 मंथ के मटीरियल, HR, overheads, capex, finance costs, interest cost, any extra expenses that you would do. लोन कैलकुलेटर लगा के रखा हुआ है कि भाई इतने पैसे. क्या सीन है? जिधर बजटिंग नहीं होती उधर सीन क्या होता है? अपन सारे अभी दौड़ रहे हैं. कितने लोग अभी फैक्ट्री में पूरा काम कर रहे हैं, रात दिन काम चल रहा है ना. 1 अप्रैल को थकने जैसा फीलिंग आती है. ये सुनो, अब गया हमारे डिस्पैच हो गया थकने. अब ये थकावट से दूर अपन खुशी वाले माहौल से बाहर निकले. फिर उसके बाद 15, 20, 25 1 मई को अपन तय करते हैं अभी करना क्या. उसके चक्कर में आपने कैलकुलेट नहीं किया 1 महीना क्या. अच्छा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन 365 दिन में से 52 दिन छुट्टी. इज दैट ओके? बेयर मिनिमम 52 दिन छुट्टी या 20 दिन दसरा, दिवाली, क्रिसमस, रमजान, ईद, ये सब गए 20 दिन. ये सब लोग छुट्टी लेते हैं. कितने गए? 52 में से 20 गए. कितने बचे? या कितने गए? 72 गए. इज दैट ओके? अब किसी का उरूस है, किसी की शादी है, किसी का यात्रा जतरा है, किसी का बीमार हो गया, किसी का पप्पा गया, बीवी गई, राइट, सम अदर थिंग. ऐसे 4-5 दिन पकड़ लो. 72 में से और 5 पकड़ लो, 77 दिन गए. 365 दिन में से दिन कितने बचे? 218 से 215 दिन. इज दैट ओके? ये 215 दिन में रेवेन्यू बनाना होता है. उसमें भी अपन अपने मस्त चक्कर में खुलते हैं. So understand what are we missing? We are missing the game because we are not disciplined in the process of planning and execution. It is not that it cannot happen. It happens. It 100% happens. So that's the. Sorry. And this is how your cash flow gets created for you. So exactly know customer receipts कितने आने वाली है. अब आपको इसको ट्रैक करना है अचीवमेंट से. सो किसी को टारगेट मिलेगा. अज्यूमिंग यू आर द सेल्स पर्सन ऑफ योर कंपनी, तो आपका टारगेट मंथ आ गया आपके पास. अच्छा, परचेस वाले को भी टारगेट मिल गया, तेरे को खरीदी कितनी करनी है, राइट. परचेस वाले को समझ में आ गया, प्रोडक्शन वाले को समझ में आ गया, सेल्स वाले को समझ में आ गया, मार्केटिंग वाले को समझ में आ गया, HR वाले को समझ कि पैसा कितना है, काम क्या है. And that's when smooth operations will start. अच्छा, let me also tell you, जितने लोग पहली बार आएंगे ना, जरूरी नहीं है आपका बजट अचीव होगा. मैं यहाँ पे माल बेचने नहीं आया. Is that okay? आपका बजट अचीव नहीं होगा, पर कितना होगा? 40-50% जरूर हो जाएगा. क्योंकि मैनेजमेंट प्रैक्टिस एक आदत है. आदत लगने के लिए टाइम जाएगा. बजट तो बना देंगे एक्सेल शीट में सब, पर उसको एग्जीक्यूशन के लिए जो डिसिप्लिन लगती है उसको वक्त जाएगा. But will you be better than this year? The answer is 100%. Is that okay? Will you be better than the last year? The answer is yes. But will you be able to achieve 100%? जैसा बोला था नहीं. उसकी समझ, उसकी एक्यूरेसी, उसके प्रोजेक्शन आने में वक्त लगता है. और मोटा वक्त हमने देखा है 3 से 4 साल ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बिठाने में लगता है. Is that okay with everybody? Good. Now, I have explained you everything. I have explained you the budget. I have explained you all the processes that are required. I have also told you how this will happen, what will happen. How many of you are interested in this? You want to come? On the leaflet behind you, there is a special pricing for the leaflet जो दिया है आराम का. There is a special pricing for the program.
And this is what for people in Martech and everybody are getting. This is per seat cost. Okay, per seat investment. Okay. Now you may want to choose whether you want to have your. My recommendation is at least have an account. अगर Excel शीट भी सही नहीं है ना, तो at least कोई accountant रखे जो भर देगा. वरना वो बाउंसर भी जाने चाहिए. Right? अगर वो भी नहीं है तो पहले बता देना मेरे पास कोई नहीं है ऐसा, आप कैसे मदद कर सकते हो, सब टीम बता देगी आपको. इज दैट ओके? पर अगर है, क्योंकि हमसे कोई ऐसी हेल्प लोगे तो जीरो से शुरू होगा. आपका बंदा आएगा तो फटाफट पकड़ लेगा, क्योंकि लैंग्वेज आपको मालूम है, इतना ही चॉइस है, बाकी कुछ नहीं. ओके, सो यू कैन कम ओवर. दिस इज द प्राइस, दिस इज द बुकिंग दैट वी हैविंग. द इवेंट इज गोइंग टू हैपन ऑन 18th and 19th in Orchid. Okay, and I would give it to Sanju. Sanju, please take it over from. Thank you very much. I hope I have added value to everything that you heard. Thank you very much for listening to me. Thank you. Thank you. नमस्कार वापस. इतनी छोटी सी ताली बस हो गया. 1 घंटा बात करने के बाद एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि नहीं? क्या है यार, पैसे तो नहीं पूछ रहे, ताली बजाने को बोल रहे हैं. राइट, ग्रेट. अभी सेशन के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है. उसके पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ. मैं एक स्टोरी छोटा सा सुनाता हूँ 1 सेकंड के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम करना कहाँ मिस हो जाते हैं अपने से. तो पहली चीज है, एक पंडित था, पंडित बहुत ज्ञानी पंडित था. तो उनका ना एक नाव पार करके, सॉरी रिवर पार करके उस तरफ जाना था, नाव में बैठ के. तो वो गया उधर, तो नाव वाला बैठा था वहाँ पे. उसको बोला मुझे उस तरफ जाना है भाई, जो भी उनका डील हो गया, जाना है, चलो जाएंगे. तो बैठ गए उसके नाव में. थोड़ा देर आगे चले. पंडित बहुत ज्ञानी पंडित है, तो पंडित को चुप बैठ नहीं सकता. तो नाव वाले को पूछा, बेटा तुमने रामायण पढ़ा है? बोला सर नहीं पढ़ा है सर, रामायण नहीं पढ़ा, मैं एकदम अपना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ. क्या बात है, रामायण नहीं पढ़ा? तेरा 25% जिंदगी खत्म हो गई. फिर थोड़ा आगे गए, तेरा महाभारत तो पढ़ा होगा? तो बोला नहीं सर, मैंने महाभारत भी नहीं पढ़ा है. तेरा 50% जिंदगी खत्म हो गई. फिर थोड़ा आगे गए, फिर इन्होंने पूछा कम से कम गीता तो पढ़ा होगा भाई? बोला नहीं सर, हमने गीता भी नहीं पढ़ी. गीता भी नहीं पढ़ी? तेरी 75% जिंदगी खत्म हो गई. ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमारी गलती है. फिर नाव आगे गए, तो बोट के नीचे से थोड़ा सा पानी अंदर आने लगा. थोड़ा सा पानी, थोड़ा लीकेज हो गया बोट, पानी अंदर आने लगे. पहले पता नहीं चला, बाद में जब पैर तक आ गए पता चला पंडित को भी. तो क्या होगा भाई? तो नाव वाले ने बोला भाई साहब इतने ज्ञानी पंडित हो, आपको पता नहीं क्या हो रहा है? मतलब बोट लीक हो रहा है, उसमें से पानी अंदर आ रही है. अच्छा, फिर आगे क्या होगा ये भी आपको पता नहीं, आगे डूबने वाला है. आपको तैरना आता है? नहीं आता है. मेरे को तैरना नहीं आता, तो समझ लो आपको 100% जिंदगी खत्म हो गई. तो हम ज्ञान बहुत रह के, बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले रहते हैं, लेकिन एक्शन किसको लेना है? हमें लेना है. राइट? तो जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक उसका रिजल्ट आएगा नहीं. राइट? एंड हम सब बिजनेस करते हो पैसे के लिए. इसमें से कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, MBA इन फाइनेंस है, ऐसा कुछ है कोई जो बिजनेस करने वाले हैं? है कोई? नहीं है. सब अपने अपने कला में फिर अच्छे हैं, कलाकार है, इंजीनियर है, डॉक्टर है या आर्किटेक्ट जो भी है. तो हमको फाइनेंस कौन सिखाया? किसने सिखाया आपको बिजनेस में फाइनेंस कैसे करना चाहिए? किसी ने सिखाया है? हमने खुद होकर सीखी. उसकी वजह से क्या हुआ? इनिशियल सीजन में काफी नुकसान हो गए, फिर हमने सीखा, फिर नुकसान कम होते गए. राइट? तो ये एक्सपर्ट फाइनेंस के साथ में बैठेंगे तो आपका फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा, ताकि आगे चल के हमें क्या चाहिए अगले साल. मैं पहले जब बात हुई थी, एक चीज बोला था, हमें प्रॉफिट चाहिए था. दूसरा क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? शांति. शांति है कि अभी? तो अगले साल थोड़ा शांति से जिए, उसके लिए ये होना जरूरी है. राइट? एंड हमने इतनी कॉस्ट कम रखी है
जनरली अगर कोई 5 स्टार होटल में कोई प्रोग्राम करता है 2 दिन का 50-60 हज़ार के नीचे करता नहीं। हमारे प्रोग्राम 40,000 का है, लेकिन महाटेक के लिए हमने इसको रिड्यूस करके सिर्फ 20,000 रखा है ताकि सब लोग अटेंड करें, अपना अपना बिजनेस का वैल्यू क्रिएट करें। राइट, थैंक यू वेरी मच सबके। अभी इसमें मुझे एक चीज़ लास्ट पूछनी है आप लोगों को, इसमें से कितने लोगों को लगता है कि मुझे 50 करोड़ का बिजनेस चाहिए, 100 करोड़ का बिजनेस चाहिए, 1000 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए, मेरा बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? सभी को लगता है, नहीं तो हम आते नहीं यहाँ पे। राइट, तो बिजनेस लोग के लिए पहला फाइनेंस समझना जरूरी है, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं फाइनेंस के लिए। तो प्लीज पीछे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आप 1999 रुपीज देकर रजिस्टर कर सकते हो, बाद में हमारे टीम आपसे फॉलो करके बाकी ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Around 90% of businesses fail in the first 10 years of its operations. Around 73% of businesses fail in the first year. The first important reason why these businesses fail is their inability to plan and have their budgets and rules. Join the India's largest budgeting festival. Build your annual operating plan